Hello, class 7 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher, Sila. Today, we are going to start with the 7th chapter, which is prepositions. Let's get started. Prepositions are words which show relationship of a noun or pronoun with another word in a sentence. They are usually followed by a noun or pronoun. For example, the frog jumped into the well. Go and sit beside Shobna. तो यहाँ पर इन टू और बिसाइड ये जो आपके वर्ड्स हैं ये हैं आपके प्रिपोजिशंस। इनसे हमें पता चल रहा है कि किसी दो ऑब्जेक्ट की या लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो पोजीशन है, वो हमें पता चल रही है कि वो बिसाइड है या इन टू है, अंडर है, अबव है एंड सो ऑन। आगे देखिए काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशंस। सिंपल प्रिपोजिशंस। सिंपल प्रिपोजिशंस क्या होते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। एट, बाय, फॉर, इन, ऑफ, from, on, out, through, till, to, up, with, etc. ये हैं आपके कुछ एग्जांपल्स सिंपल प्रिपोजिशंस के। अब आइए देखिए नेक्स्ट फ्रेज प्रिपोजिशन। These are groups of words with the force of a single preposition. Example: according to, by means of, in case of, in accordance with, in regard to, in spite of, etc. अब देखिए compound prepositions. These are generally formed by prefixing a preposition to a noun, an adjective or an adverb. Example: about, across, above, along, against, among, around, before, behind, below, beneath, beyond, inside, outside, beneath, without, etc. अब नेक्स्ट देखिए participle prepositions. Touching, concerning, pending, respecting, regarding, considering are participles and are frequently used absolutely without any noun or pronoun attached to them and perform the function of a preposition. ये जो भी हमने ऊपर एग्जांपल्स पढ़े ये सभी आपके फंक्शंस हैं प्रिपोजिशंस के। Read the chart given ahead and learn the use of various prepositions. So students, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है, उसकी मदद से आप यहाँ पर इसके प्रिपोजिशंस यानी कि वेरियस प्रिपोजिशंस जो हैं उनके बारे में आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आइए देखिए इस टेबल को देखते हैं। यह है एक प्रिपोजिशंस की टेबल। आपको यहाँ कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, अब उन्हें देखिए। अब यहाँ पर आपको जो टेबल दी गई है उसमें कुछ कॉलम्स है जैसे कि टाइम, प्लेस, इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो आइए इन्हें देखते हैं। पॉइंट, एट होम, एट द क्रॉसिंग, एट द बैंक, एट द फेयर। अब इसी तरीके से हम डायरेक्शन देखेंगे। एट द कॉर्नर ऑफ जे ब्लॉक एंड प्रताप विहार। नेक्स्ट देखिए टूवर्ड्स अ गोल यानी कि डेस्टिनेशन। इसमें देखिए टू हिज अपार्टमेंट, टू द बस स्टैंड। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइंब, इन द कार, ऑन द बस, ऑन द प्लेन, on the train, on the ship. अब देखिए the time of the day at noon, higher than a point, over the roof, above the window, of, approve of his speech, consist of many pages, smell of alcohol, dream of becoming a film star, think of a problem, surface, on the ground, movement towards a surface, into the net, go, by bus, by car, by ship, on foot. अब नेक्स्ट देखिए periods of time, day, months, years, season. In the morning, in March, in 2000, in summer, lower than a point, under the ground, underneath the blanket, beneath the stars, below sea level, in the field, in the room, in the street. अब नेक्स्ट देखिए मूवमेंट टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ अ वॉल्यूम। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए एक्सटेंडेड टाइम,
since yesterday, for 2 weeks, from June to September, from spring until fall, during the evening, within a year, neighboring point, near the park, by the store, next to my house, between Saket and Malviya Nagar, among the books, opposite the cinema hall, area volume, not enclosed by a fence, on the open range, movement in a general direction, towards a mountain. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रीपोजिशन समझ में आए होंगे, उनके टाइप्स और काइंड समझ में आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पहले देखिए सेक्शन ए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। द फर्स्ट टू हैज बीन डन, फिल्ड फॉर यू। द फर्स्ट टू हैव बीन फिल्ड फॉर यू। पहला देखिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। हमने यहाँ बाय इसलिए लिखा है क्योंकि ऑप्शंस में इन योर वॉच और बाय योर वॉच दो ऑप्शन दिए थे, तो इन योर वॉच अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए बाय हमने यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से दूसरा देखिए, ही वॉज स्टैब्ड डैश अ डैगर। यहाँ पर बाय और विथ दो ही वर्ड्स आपको दोनों ही दिए हैं और दो ही ब्लैंक्स हैं, तो कहाँ पर कौन सा आएगा वो देखिए। ही वॉज स्टैब्ड बाय अ पंडित विथ अ डैगर। इसी तरीके से एक और थर्ड देख लेते हैं हम, आई प्रिफर कॉफी डैश टी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई प्रिफर कॉफी देन टी। देन THAN वाला हम देन तब यूज करते हैं जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तो हमने यहाँ पे कॉफी और टी का कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पर हम देन लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। द फर्स्ट वन हैज बीन फिल्ड फॉर यू। अभी यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ब्रैकेट में जो आपको प्रीपोजिशंस के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी हेल्प से। पहला आपको करके दिया हुआ है, आइए उसे देखते हैं। यू मस्ट स्टार्ट अर्ली डैश रीच द स्टेशन डैश टाइम। तो यहाँ पर टू और इन दोनों ही आपको प्रीपोजिशंस दिए हैं, आपको इनमें से कहां पर कौन सा लगाना है वो देखना है। तो हमने यहाँ पर पहले लिखा है यू मस्ट स्टार्ट अर्ली टू रीच द स्टेशन इन टाइम। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, शी वॉज born डैश अ स्मॉल विलेज डैश वाघा बॉर्डर। अब यहाँ पर आप लिखेंगे शी वॉज born इन अ स्मॉल विलेज नियर वाघा बॉर्डर। इसी तरीके से बाकी भी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, इन द पैसेज गिवन बिलो देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, स्पॉट द मिस्टेक एंड सर्कल इट, राइट द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब नीचे आपको एक पैसेज दिया गया है स्टूडेंट, उसकी हर एक लाइन में कोई ना कोई मिस्टेक है, तो जो भी मिस्टेक है उसको आप सर्कल करेंगे और उसके बाद में जो करेक्ट होगा उसका वो आप साइड में जो आपको स्पेस दिया गया है वहां लिखेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिए हुए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। अ चाइल्डलेस कपल चिक्का थिमक्का एंड हर हस्बैंड बिक्कल चिक्किया बाय हुल्लका अबाउट बैंगलोर, planted and nurtured a roadside avenue of 240 banyan trees। अब जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो लाइंस थी, उनमें जो भी गलत वर्ड्स थे उनको यहाँ पर चेंज किया गया है। जैसे कि बाय था, बाय हुलक्का, तो यहाँ पर ऑफ हुलक्का, वो हुलक्का जो एक एरिया है बैंगलोर में वहां पर से, तो बाय की जगह ऑफ आएगा, ऑफ हुलक्का नियर बैंगलोर, बैंगलोर के पास में ये जगह है, तो अबाउट नहीं नियर आएगा, नियर बैंगलोर। planted and nurtured a roadside avenue of 240 banyan trees for a period for over, यहाँ पर for नहीं of आएगा, of over 40 years। थिमक्का and her husband, जिस ऐसे ही आप पूरा ये पैसेज कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको सेकंड जो एरर, यहाँ जो थर्ड एरर था जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है वो ये है कि पीरियड ऑफ, यहाँ पर जो एरर है वो ये है banyan tree for a period ऑफ ओवर 40 ईयर्स, फॉर की जगह ऑफ आएगा, तो फॉर को आप सर्कल करेंगे और यहाँ पर जो स्पेस दिया है वहां पर आप ऑफ लिखेंगे, ऑफ ओवर 40 ईयर्स। इसी तरीके से पूरा पैसेज आप कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से पूरा पैसेज आप कंप्लीट करेंगे और इसमें जो भी एरर्स है उन्हें सर्कल करके उसके ऑल्टरनेटिव जो सही आंसर होगा उसे स्पेस प्रोवाइडेड जो आपको है वहां पर सही आंसर लिखेंगे। सो आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ में आए हैं, उनके काइंड समझ में आए हैं। एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे।
We'll meet you in the next class. Till then, bye students.